افریقہ میں ایک بہت بڑا کریک دیکھا گیا ہے۔ یہ کریک کینیا، ایتھیوپیا اور تنزانیہ میں دیکھا گیا۔ ویڈیو فوٹیجز اور ڈرون شاٹس میں دیکھا گیا کہ پوری کی پوری کنٹریز کو ایک بہت بڑے کریک نے ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ اس کریک نے نہ روڈ دیکھے، نہ فصلیں، نہ گھر دیکھے، نہ شہر۔ اس کے کچھ حصے 10 میٹر تک چوڑے ہیں اور کچھ 2 ملی میٹر جتنے پتلے۔ کہیں پر لوگوں نے اس کو مٹی سے بھرنا شروع کر دیا تو کہیں پر اس کے اوپر ٹیمپرری برج بنائے جانے لگے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید نرم مٹی کسی وجہ سے بیٹھ گئی ہے۔ زیم ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ناظرین، افریقن کانٹیننٹ کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سب سے گرم کانٹیننٹ ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ افریقہ کی لوکیشن ارتھ کے ٹھیک سینٹر میں آتی ہے، یعنی پرائم میریڈین اور ایکویٹر کی لائنز جہاں آپس میں ملتی ہیں، ٹھیک اسی جگہ پر افریقن کانٹیننٹ موجود ہے۔ اب کیونکہ ایکویٹر سورج سے زیادہ قریب ہے، اسی وجہ سے افریقہ سب سے گرم ترین کانٹیننٹ ہے۔ لیکن اگر ہائیسٹ ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو وہ USA میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ افریقہ گرم ترین کانٹیننٹ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ افریقہ میں سردی نہیں پڑتی۔ یہاں عفران کے مقام پر -23 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا چکا ہے۔ بات کی جائے رنگوں کی تو افریقن کانٹیننٹ یہاں بھی انوکھا منظر پیش کرتا ہے۔ نہ صرف رنگ بلکہ ہر معاملے میں افریقہ ایک طرف کافی ایکسٹریم ہے تو وہیں اس کا ہلکا مزاج بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پہ دنیا کے 10 سب سے غریب ملک بھی افریقہ میں ہی موجود ہیں، اور انہی کی وجہ سے افریقہ دنیا کا غریب ترین کانٹیننٹ کہلایا جاتا ہے۔ لیکن وہ افریقہ ہی ہے جہاں دنیا کے سب سے زیادہ قیمتی منرلز پائے جاتے ہیں۔ وہی افریقہ جو دنیا کا غریب ترین کانٹیننٹ ہے، یہاں پر گیبون کے کیپٹل لبریویل کو ایئر 2000 میں دنیا کا سب سے مہنگا ترین شہر ڈکلیئر کیا گیا تھا، پیرس، نیو یارک اور سنگاپور سے بھی مہنگا۔ یہ سب سننے کے بعد کافی عجیب سا لگتا ہے، لیکن افریقہ میں صومالیہ کا کیپٹل موگادیشو دنیا کا سب سے خطرناک شہر مانا جاتا ہے۔ افریقہ کی ٹوٹل پاپولیشن 1.5 ارب ہے، لیکن بدقسمتی سے یہاں کی 40% آبادی الٹریٹ ہے، یعنی نہ ان کو پڑھنا آتا ہے نہ ہی لکھنا۔ پر دوسری سائیڈ پہ دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی بھی ویسٹ افریقہ میں ہی پائی جاتی ہے۔ مالی کے شہر ٹمبکٹو میں موجود یہ یونیورسٹی 800-900 سال پہلے بنی تھی، اور اپنے عروج پر اس میں 25,000 اسٹوڈنٹس پڑھتے تھے، جبکہ اس وقت یہاں کی ٹوٹل پاپولیشن ہی 1 لاکھ تھی۔ حیرانی کی بات ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ ٹوئن برتھ ریٹ بھی افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ یہاں 1000 میں سے 50 برتھس ٹوئن بیبیز کی ہوتی ہیں۔ یہ انٹرنیشنل ٹوئن برتھ ریشو سے کئی زیادہ ہے، لیکن ابھی تک سائنس اس بات سے لا علم ہے کہ افریقہ میں ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ دوسری طرف یہاں پیدا ہونے والے ہر 14 میں سے ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد گھر پہنچنے سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ چائلڈ مورٹیلٹی کا یہ ریشو بھی دنیا میں سب سے زیادہ افریقہ میں ہی پایا جاتا ہے۔ ایسٹ افریقہ میں کینیا اپنے رنرز کی وجہ سے خاصا مشہور ہے۔ 2010 میں کینیا کے رنرز نے 156 میں سے 126 انٹرنیشنل میراتھنز جیتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر چیمپئنز کلنجی نامی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، پر سائنٹسٹ ابھی تک اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آخر اس قبیلے میں ایسی کون سی خاص بات ہے۔ دنیا کی سب سے جلدی ختم ہونے والی جنگ بھی افریقہ میں ہی لڑی گئی تھی، صرف 38 منٹس کی جنگ۔ 27 اگست 1896 کو یہ جنگ زنزیبار اور گریٹ برٹین کے درمیان لڑی گئی تھی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ 25 اگست 1896 کو زنزیبار کے سلطان حماد بن تھوئینی کی اچانک موت ہو گئی۔ ان کو ان کے ہی کزن خالد بن برگش نے زہر دے کر مارا اور زنزیبار کا نیا سلطان بن کر بیٹھ گیا۔ اس نئے سلطان کو جرمنی کی سپورٹ حاصل تھی، جبکہ برٹشرز چاہتے تھے کہ ان کی پسند کا نیا سلطان بنے۔ لہٰذا برٹش ملٹری نے نئے سلطان کو الٹیمیٹم دیا کہ وہ زنزیبار کے تخت کو صبح 9 بجے تک خالی کر دے۔ خالد بن برگش نے گریٹ برٹین کا حکم ماننے سے انکار کیا اور اپنے 2800 فوجی آئی لینڈ پر اپنے محل کے باہر کھڑے کر دیے۔ صبح 9 بجے جب الٹیمیٹم ختم ہوا تو برٹش رائل نیوی کی شپس نے آؤ دیکھا نتاؤ سلطان کے محل پہ گولوں کی بارش کر دی۔
और 9:37 पे महल का झंडा उखाड़ दिया। 38 मिनटों तक चलने वाली इस जंग में जहां सुल्तान के 2800 में से 500 फौजी मारे गए, वहीं ब्रिटिश नेवी का सिर्फ एक सेलर जख्मी हुआ था। अफ्रीका की बात हो और इजिप्ट के पिरामिड्स की ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है? लेकिन क्या आपको मालूम है कि इजिप्ट से 2 गुना ज्यादा पिरामिड्स सूडान में मौजूद हैं, और ये भी एक अफ्रीकन कंट्री ही है। एस्टिमेट्स के मुताबिक सूडान में 250 से ज्यादा पिरामिड्स हैं, जबकि इनकी साइज काफी छोटी है। इसी वजह से ये टूरिस्ट्स के बीच ज्यादा फेमस नहीं। इतना सब कुछ अफ्रीका में हो रहा है तो जाहिर है ये काफी बड़ा भी होगा, पर ये क्या वर्ल्ड मैप पे ये इतना छोटा क्यों दिख रहा है? इस वर्ल्ड मैप पे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को देखें और फिर यूएसए के इस कॉन्टिनेंट को देखें। देखने में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट अमेरिकन कॉन्टिनेंट से काफी छोटा लग रहा है, लेकिन हकीकत में अफ्रीका जितना मैप्स पे दिखता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। नंबर्स की तरफ देखा जाए तो अफ्रीका लगभग 3 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। अगर मैप पे दिखने वाला अफ्रीका इतना बड़ा है तो यकीनन अमेरिकन कॉन्टिनेंट 4 या 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होगा, पर असल में अमेरिका का एरिया सिर्फ 90 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जी हाँ, अफ्रीका से भी 3 टाइम्स छोटा। असल में जो वर्ल्ड मैप हम इस्तेमाल करते हैं ये हमारे अर्थ का एक आसान वर्जन है, ना कि असल वर्जन। दुनिया का सही मैप मौजूद ही नहीं है और ना ही इसको परफेक्टली बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारी दुनिया गोल है और फ्लैट मैप पे कॉन्टिनेंट्स और इनकी साइज को सही से बयान करना पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जाम्पल एक टेनिस बॉल की है जिस पर टेप चढ़ी हो। अगर हम उसकी टेप उतार कर उसको फ्लैट सरफेस पे रखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं से वो उठी ही रहेगी। अगर उसको बिल्कुल फ्लैट करना हो तो हम इसको स्ट्रेच करेंगे, जिससे वो बिल्कुल सीधी तो हो जाएगी, लेकिन अब उसका एरिया बदल जाएगा। ठीक इसी तरह जब गोल दुनिया को 2D मैप में कन्वर्ट किया जाता है तो पोल्स के करीब वाले कॉन्टिनेंट्स जरूरत से ज्यादा बड़े स्ट्रेच होने की वजह से लगते हैं। इसी मैप में ग्रीनलैंड को देखें, कितना बड़ा लग रहा है, लेकिन असल में ये अफ्रीका तो दूर, यहाँ की कंट्री कॉन्गो से भी छोटा है। अफ्रीका क्योंकि इक्वेटर के बिल्कुल करीब है, इसी वजह से 2D मैप पे ये स्ट्रेच नहीं बल्कि श्रिंक या फिर सिकुड़ा हुआ लगता है। हकीकत में ये इतना बड़ा है कि इसके अंदर पूरा यूएसए, चाइना, इंडिया और इवन यूरोप का भी काफी सारा हिस्सा फिट आ सकता है। जियोग्राफी की बात हो ही रही है तो हम थोड़ा इसकी और गहराई में जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या अफ्रीका हमेशा से ही ऐसा था जैसा आज दिखता है? क्या कोई ऐसा टाइम भी था जब अफ्रीका बिल्कुल ही अलग दिखता था? साइंसदानों का कहना है कि हर 50 करोड़ सालों के बाद हमारे अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स सारे कॉन्टिनेंट्स को आपस में जोड़ देती हैं, जिससे एक ही बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट बन जाता है। आखिरी बार ये सुपर कॉन्टिनेंट 20 करोड़ साल पहले टूटना शुरू हुआ था, जिसको आज पेंजिया कहा जाता है। इस एनिमेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे एक ही सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर अलग अलग छोटे कॉन्टिनेंट्स में बंट गया। साइंसदानों का दावा आज प्रूव भी होता है, क्योंकि ईस्टर्न साउथ अमेरिका की शेप वेस्टर्न अफ्रीका के साथ एक पजल पीस की तरह मैच करती है। पेंजिया की इस थ्योरी को मजीद साबित करने के लिए साउथ अमेरिका और अफ्रीका में मीजोसोरस के फॉसिल्स मिले हैं, जिससे ये जाहिर होता है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट्स जो आज समंदर पार हैं, ये असल में कभी एक ही हुआ करते थे। और साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली काफी स्पीशीज ऐसी हैं जो वेस्ट अफ्रीका के इन जंगलात में भी पाई जाती हैं। गूगल अर्थ पर भी आप अफ्रीका के इस हिस्से को ऐसा ही हरा भरा देख पाएंगे जैसा कि साउथ अमेरिका है। पर क्या अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हमेशा ही ऐसा रहेगा? कॉन्टिनेंट्स के जुदा होने का ये प्रोसेस करोड़ों सालों से चलता आ रहा है और अभी तक चल रहा है। 2018 में खबरें गर्दिश करने लगीं कि अफ्रीका में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है। ये क्रैक कीनिया, इथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। वीडियो फुटेजेस और ड्रोन शॉट्स में देखा गया कि पूरी की पूरी कंट्रीज को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड कर दिया है। इस क्रैक ने ना रोड देखे, ना फसलें, ना घर देखे, ना शहर। इसके कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं और कुछ 2 मिलीमीटर जितने पतले।
कहीं पर लोगों ने इसको मिट्टी से भरना शुरू कर दिया तो कहीं पर इसके ऊपर टेम्पररी ब्रिज बनाए जाने लगे। लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी किसी वजह से बैठ गई है, पर असल में साइंटिस्ट का कहना है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में बट रहा है। पहले ऐसा समझा जाता था कि अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर खड़ा है, लेकिन 1970 में कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे ये पता चला कि अफ्रीकन प्लेट टूट रही है। जियोलॉजिस्ट्स को पहले से इसकी खबर थी, लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि ये इतना जल्दी हो जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या अफ्रीका वाकई में 2 हिस्सों में तकसीम हो रहा है, जैसा कि करोड़ों साल पहले साउथ अमेरिका इससे अलग हुआ था? इसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि ईस्ट अफ्रीका की टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, रेड सी से लेकर मोज़म्बिक तक, और ये हर साल करीब 6 मिलीमीटर तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से दूर हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये पूरा हिस्सा अलग होकर एक आइलैंड बन जाए, या फिर इसके बीच रेड सी की तरह कोई नया ओशन नमूदार हो जाए, या फिर ये प्रोसेस यहीं पर ही रुक जाए। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो कुछ भी होगा इसको करीब 5 करोड़ साल लग जाएंगे। आगे चलकर जो भी हो, पर आज हम इस प्रोसेस के यानी कॉन्टिनेंटल रिफ्ट को देख सकते हैं और इसके आई विटनेस भी हैं। ये हमारे लिए एक याद दहानी भी हो सकती है उन तबाहकुन ताकतों की जो जमीन के नीचे छुपकर अपना काम कर रही हैं। अफ्रीका की गहराई में सिर्फ तबाहकुन ताकतें ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का 1/3 हिस्सा भी मौजूद है। यहाँ तक कि दुनिया में जब भी किसी नायाब मिनरल की तलाश करनी हो तो साइंटिस्ट सबसे पहले अफ्रीका की जमीन को चुनते हैं, क्योंकि उनको पक्का यकीन होता है कि ये कहीं और मिले ना मिले, अफ्रीका में जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पे कोलम्बाइट टेंटलाइट एक ऐसा मेटल है जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में काम आता है। इसको अक्सर कॉल्टन भी कहा जाता है। इसकी खास बात यह है कि इसको जंग नहीं लगता और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है। इस मेटल से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जो आजकल हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं। अंदाजा किया जाता है कि इस मेटल के 80% रिजर्व्स अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसी तरह एल्युमिनियम की प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाला बॉक्साइट भी अफ्रीका में ही पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेमस्टोन डायमंड भी सबसे ज्यादा अफ्रीका में ही माइन होता है। ये सब कुछ अफ्रीका के नेचुरल रिसोर्सेज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अफ्रीका की बात हो तो सहारा डेजर्ट पे बात किए बिना टॉपिक खत्म नहीं होता। सिर्फ सहारा के अंदर ही इतने राज छुपे हैं जो अकेले ही पूरे अफ्रीका का मुकाबला कर सकते हैं। यहाँ मौजूद एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको स्पेस से देखा जाता है, 40 किलोमीटर बड़ा ये गोल निशान जिसको आई ऑफ सहारा और रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसके नीचे कौन सा राज छुपा है? किंग टूटनखामुन के नेकलेस का अनोखा पत्थर जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिला, वो सिर्फ सहारा के बीचों बीच पाया गया था। सहारा से पहले यहाँ क्या होता था और कैसे ये इतने बड़े रेत के समंदर में बदल गया, वो भी सिर्फ अफ्रीका के नॉर्थ में, जबकि बाकी पूरा अफ्रीका हरा भरा और ट्रॉपिकल है। इन सब खसूसियात के साथ साथ वो सहारा ही है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरा भरा और जिंदगी से भरपूर है। लेकिन आखिर कैसे? ये सब और बहुत कुछ आप जान सकेंगे सीक्रेट्स ऑफ अफ्रीका के नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।